السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی ویڈیو سیریز جس کا نام محمد سب کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا 69واں حصہ یعنی پارٹ 69 ہے۔ تھوڑا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے 68ویں حصے میں کیا سنا۔ ہم نے 68ویں حصے میں سنا فتح مکہ کا واقعہ، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ کو فتح کیا، جس مکہ کی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور ہو کر چھپ چھپا کر چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنی پڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی اور اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور بڑی شان آن بان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ لیکن آپ بادشاہوں کی طرح مکہ میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ سر جھکائے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے داخل ہوئے، اور کعبہ کو پھر بتوں سے پاک کیا، اور سارے دشمنوں کو عام معافی کا اعلان کیا۔ کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کی گردن نہیں ماری۔ یہی وجہ تھی مکہ کے بڑے بڑے سردار متاثر ہوئے اور اسلام کو قبول کیا۔ چلیے اب آگے سنتے ہیں۔ مکہ کا فتح ہو جانا اسلام کی عظیم الشان فتح تھی۔ اس سے مسلمانوں کو دین کا زبردست فائدہ ہوا اور دنیا کا بھی۔ ایک طرف تو اس فتح سے دور دور تک مسلمانوں کا رعب اور ہیبت پیدا ہو گئی، اور دوسری طرف قریش کے جو بڑے بڑے سردار جو اب تک اسلام اور رسول اللہ کے دشمن تھے، ایک دم مسلمان ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو سفیان اور حضرت حکیم بن حزام تھے۔ یہ دونوں تو مرزہران کے مقام پر آ کر ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تیسرے حضرت اکرمہ بن ابو جہل تھے، جو قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، مگر ان کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی سفارش کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی دلا دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مہربانی کے معاملے میں ان کے دل پر گہرا اثر ہوا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت صفوان بن امیہ بھی، ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دے دی تھی، وہ بھی آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ پانچویں حضرت سہیل بن عمرو ہے، ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی تھی، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ دونوں بھی قریشی سرداروں میں سے تھے۔ اسی طرح ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ فتح کے بعد یہ دونوں مکہ سے بھاگ گئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ان دونوں کے متعلق پوچھا کہ یہ دونوں نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ تو حضرت عباس نے بتایا کہ یہ دوسرے مشرکوں کے ساتھ کہیں بھاگ گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ان دونوں کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت عباس فوراً ان کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ وہ دونوں بھی ارنا کے مقام پر حضرت عباس کو مل گئے۔ حضرت عباس انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان دونوں کو اسلام لانے کے لیے کہا، تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کعبہ کے دروازے پر لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بھائی یعنی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت معاویہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے ذریعے مسلمانوں کو ایسی بڑی بڑی خوشیوں اور نعمتوں سے نوازا کہ مسلمان اپنے اگلے پچھلے سارے غم بھول گئے۔ جب مکہ کی فتح مکمل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پتھروں کے خداؤں سے مکہ کو پاک کر دیا اور اعلان کرا دیا کہ کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں بت نہ رکھے۔ اس طرح مکہ اور عرب جو بتوں کا اڈا بنا ہوا تھا، چند ہی دنوں میں پتھر کے ان بتوں سے پاک ہو گیا۔
खास मक्का के अलावा और आसपास के शहरों और कस्बों में भी बड़े बड़े बुत थे जो सारे अरब में मशहूर थे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हटाने का, ख़त्म करने का इरादा फरमाया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जमातें भेजी जिन्होंने जाकर मुल्क अरब से बुतों का सफाया किया। इन बुतों में उज़्ज़ा और मनात भी थे जिनको मुशरिकीन बहुत बड़ा समझते थे। मक्का फतह हो जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 दिन मक्का में ही ठहरे रहे। इसी अरसे में शव्वाल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात जिसकी कमान हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला को दी, इस्लाम की तबलीग के लिए कबीले बनी जजीमा की तरफ भेजा। हजरत खालिद जो अपनी जमात लेकर बनी जजीमा के पास पहुंचे तो ये लोग हथियार लेकर आपके सामने आ गए, मगर ये सब मुसलमानों को देखकर घबरा गए। हजरत खालिद ने उनके सामने पहुंचकर उन्हें इस्लाम पेश किया, उन्हें लड़ाई से रोका। वो लोग घबराए हुए थे और उन्हें जब ये मालूम हुआ कि इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने गलबा और फतह अता कर दी है तो वो और ज्यादा बदहवास हो गए। इसी घबराहट में वो एकदम कहने लगे कि हमने अपना दीन छोड़ दिया, हमने अपना दीन छोड़ दिया। वो घबराहट में साफ ये कह न सके कि हम मुसलमान हो गए और हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला उनका मतलब भी नहीं समझ सके। इसलिए हजरत खालिद ने उन पर हमला करके उनके काफी आदमियों को कत्ल कर दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया। यहां से वापस होकर हजरत खालिद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और आपको सारा वाकया सुनाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपको सख्त रंज हुआ, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हाथ उठाकर 2 मरतबा ये कहा कि ए अल्लाह, खालिद ने जो कुछ भी किया मैं उससे बरी हूं। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को माल देकर बनी जजीमा के पास भेजा कि उनको दियत और खून बहा देकर आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जाकर एक एक को उनका खून बहा दिया, दियत दी। उसके बाद जो कुछ माल बचा वो भी उन्हीं में तकसीम करके आ गए। इस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेगुनाहों के खून का बदला चुका दिया। मक्का फतह हो जाने के बाद सारे अरब में मुसलमानों की धाक बैठ गई थी। इसी वजह से अरब के अक्सर कबीलों ने मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली थी, मगर 2 कबीले अब भी ऐसे थे जिन्होंने ना तो इस्लाम कबूल किया और ना ही हार मानी थी। ये कबीले बनु हवाजिन और बनु सकीफ थे जो ताइफ के थे। ये दोनों बड़े बड़े और सरफिरे कबीले थे। बनु हवाजिन के सरदार का नाम मालिक बिन औफ था, हालांकि ये बाद में मुसलमान हो गए थे। बनु हवाजिन तीर अंदाजी में बहुत माहिर थे और बहुत लड़ने वाली कौम समझे जाते थे। मालिक बिन औफ ने अपनी कौम से मशवरा करके जंग की तैयारी कर ली। उन्होंने 20,000 का जबरदस्त लश्कर तैयार किया और उसे लेकर रवाना हो गए। इस लश्कर के साथ हर सिपाही के साथ माल और दौलत और अपने बीवी बच्चे भी थे, जिसकी वजह यह थी कि माल और दौलत और बीवी बच्चे साथ होने की वजह से हर सिपाही आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। इस लश्कर में कबीले साथ के लोग भी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन अपना इसी कबीले में गुजारा था, क्योंकि हजरत हलीमा सादिया भी जो है इसी कबीले से थी और आपने हजरत हलीमा सादिया का दूध पिया था जो इसी कबीले की थी। इस लश्कर में कबीले बनी सकीफ के लोग भी थे और उनके साथ एक शख्स दुरैद बिन सिम्मा भी था। ये एक बहुत ज्यादा बूढ़ा शख्स था जिसकी उम्र 150 बरस की थी। ये कबीले सकीफ के बड़े लोगों में था, मगर अब बुढ़ापे की वजह से अंधा हो चुका था। मालिक बिन औफ ने उनको यानी दुरैद बिन सिम्मा को इसलिए साथ लिया था कि ये जंगों के मामले में बहुत ज्यादा माहिर था। उसकी चालाकियां, उसकी चालें और अय्यारियां बहुत मशहूर थी। मालिक बिन औफ ने दुरैद बिन सिम्मा यानी उस बूढ़े से यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर बात और हर मशवरा मानूंगा। अब ये अजीम शान लश्कर हवाजिन से रवाना हुआ और औतास के मकाम पर आकर ठहरा। यहां बूढ़े दुरैद ने लोगों से पूछा कि ये कौन सी जगह है। लोगों ने कहा कि ये औतास है। दुरैद ने कहा कि ये जगह लड़ने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी वक्त दुरैद ने औरतों की आवाजें सुनी
बच्चों की आवाजें सुनी। दुरैद चूंकि अंधा था, इसलिए अभी तक उसे इस बात की खबर नहीं थी कि मालिक बिन औफ ने लश्कर के साथ माल और दौलत और औरतों और बच्चों को भी साथ लिया है। और उसी वक्त उसने ये आवाजें सुन ली, इसलिए दुरैद को यानी उस बूढ़े को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने आदमियों से पूछा कि मुझे मुख्तलिफ जानवरों की बोलने की और बच्चों की रोने की आवाजें आ रही है, ये सब क्या है? लोगों ने उसे बताया कि मालिक बिन औफ ने सब औरतों और बच्चों को साथ लिया है। ये सुनकर दुरैद बिन सिम्मा यानी उस बूढ़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने मालिक बिन औफ को बुलाकर कहा कि मालिक, तूने बहुत बड़ी गलती की है। जंग में सिवाय तीर और तलवार के कोई चीज काम नहीं आती। उस बूढ़े दुरैद ने मालिक बिन औफ से कहा कि ठीक है, अब तुम ये करो कि इन औरतों और बच्चों को लश्कर के पीछे रखो। अगर हम हारे तो जान बचाकर ये लोग भाग सके। तो मालिक बिन औफ ने दुरैद की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि मालिक ने यह वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर अब उन्हें जिद हो गई। इस पर वो बूढ़ा दुरैद बिगड़ गया। उसने कहा कि अच्छा, तो मैं अब वापस जा रहा हूं। लोगों ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मालिक को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने लोगों से कहा कि हवाजिन के लोगों, मेरा हुक्म मानो, वरना मैं अपनी ही तलवार अपनी पेट में मारकर अपनी जान दे दूंगा। मालिक बिन औफ चूंकि सरदार था, इसलिए लोग घबरा गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे ताबेदार हैं, हम तुम्हारी ही बात मानेंगे। अब मालिक बिन औफ ने अपने जासूसों को मुसलमानों की तरफ रवाना किया ताकि इस्लामी लश्कर का हाल मालूम हो सके। उसके बाद मालिक ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाकर वादी हुनैन में पहुंचाया। ये जो वाकया चल रहा है जिस जंग का, ये ग़ज़वे हुनैन का ही वाकया चल रहा है। तो मालिक अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ा और हुनैन में पहुंचकर मालिक ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वादी हुनैन में कमीन गाहों की तलाश करें। कमीन गाहें किसे कहते हैं? मैंने इससे पहले भी कहा था, ऐसी जगह जहां छुपकर दुश्मनों के घात में बैठा जाता है और उन पे निगाह रखी जाती है, और जब दुश्मन आ जाता है तो फिर अचानक हमला किया जाता है। उस जगह को कमीन गाह कही जाती है। अब ये कमीन गाहें तलाश की गई, बनाई गई, और मालिक ने अपने लश्कर को इस तरह छुपा दिया कि सब कमीन गाहों में जाकर छुप गए और फिर मुसलमानों का इंतजार करने लगे। मालिक ने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया कि सब तलवारें निकाल कर बैठो, और जब मुसलमान इस वादी से गुजरे तो अचानक एकदम उनके ऊपर टूट पड़ो ताकि उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिले। और कहा कि 20,000 तलवारों के साथ अचानक उन पर हमला कर दो। इस खतरनाक चाल के साथ यह जबरदस्त लश्कर कमीन गाहों में छुपकर मुसलमानों की घात में बैठ गया। बनु हवाजिन जब मुसलमानों से जंग करने की तैयारी कर रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला असलमी को जासूस बनाकर बनु हवाजिन की तरफ भेजा। वो बनु हवाजिन में पहुंचे, 1-2 दिन वहां पर रहे और खुफिया तरीके से रहकर उनका हाल मालूम करते रहे। उसके बाद वापस आकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उनका लश्कर कितना बड़ा है और उनके साथ इतनी माल और दौलत है, औरतें हैं, बच्चे हैं, हथियार हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर बड़े यकीन के साथ फरमाया कि इंशाअल्लाह ये सारा माल गनीमत कल मुसलमानों का माल गनीमत होगा। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफवान बिन उमैया से 100 जिरहे आर्जी तौर पर ली, यानी वक्ती उधार ली। उस वक्त हजरत सफवान बिन उमैया मुसलमान नहीं हुए थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजाद भाई नौफल बिन हर्स से 3000 नेज़े उधार लिए। सारी तैयारियां मुकम्मल होने के बाद इस्लामी लश्कर बनु हवाजिन की तरफ बढ़ना शुरू किया। उस वक्त इस्लामी लश्कर में 12,000 आदमी थे। 10,000 तो वो थे जो मक्का फतह करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से आए थे, और 2,000 वो थे जो मक्का में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हुए थे। उनमें से तो कुछ ऐसे थे कि जो मुसलमान नहीं हुए थे मगर मुसलमानों के ताबेदार हो गए थे। इस तरह ये 12,000 आदमियों का अजीमुशान लश्कर 8 शव्वाल
सन 8 हिजरी को मक्का से हवाजिन की तरफ रवाना हुआ। तो एक सहाबी की जबान से यह बड़ाई का जुमला निकल गया कि आज हम मुसलमान बड़ी तादाद में हैं और हमारे पास जबरदस्त लश्कर है, हम शिकस्त नहीं खा सकते। यानी हमारा लश्कर इतना बड़ा है कि हम तादाद में कम नहीं है, इसलिए हम हार नहीं सकते। हाँ, अल्लाह ताला को हमारी हार अगर मंजूर हो तो हम हार सकते हैं। ये जो बड़ाई का जुमला उस सहाबी की जबान से निकला तो अल्लाह तबारक व तआला को उस सहाबी की ये बात पसंद नहीं आई। तीसरे दिन यानी पीर के रोज इस्लामी लश्कर हुनैन में दाखिल हुआ। यहां पर बनु हवाजिन हर तरफ कमीन गाहों में छुपे हुए बैठे हुए थे और मुसलमानों को इसका कुछ भी पता नहीं था कि यहां दुश्मन तलवार सोते हुए घात में बैठे हैं। जब मुसलमान उस दुर्रे से गुजरने लगे तो अचानक दुश्मने तलवारें लेकर उन पर टूट पड़े। 20,000 तलवारें, जरा सोचिए, 20,000 तलवारें एकदम मुसलमानों के ऊपर लहराने लगी। यह हमला बहुत सख्त था और बहुत कामयाब भी रहा। मालिक बिन औफ को इसका मशवरा दुरैद बिन सिम्मा यानी बूढ़े ने दिया था। उसने मालिक से कहा था कि तुम अपने लिए कमीन गाहें बना लो, इससे तुमको बहुत मदद मिलेगी। अगर तुमने कमीन गाहों से मुसलमानों पर हमला किया तो एक भी बचकर नहीं जाएगा। इस तरह मालिक ने बूढ़े दुरैद की राय पर अपने लश्कर को कमीन गाहों में छुपा दिया था। जैसे ही मुशरिकों ने मुसलमानों को देखा कि वो दुर्रे में दाखिल हो गए हैं तो वो सब मिलकर एक साथ टूट पड़े और मुसलमानों को ऐसे हमले का बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था, इसलिए वो एकदम घबरा गए और घबराहट के आलम में जिसका जिस तरफ मुंह था वो उस तरफ भाग खड़ा हुआ। वो सब इतने यानी मुसलमान इतने बदहवास हो रहे थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यहां तक कि इस वादी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 में से सिर्फ 10-12 सहाबी रह गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 70वें हिस्से में यानी पार्ट 70 में हम गज़वे हुनैन का ही पूरा वाकया सुनेंगे कि दुश्मनों के इस जबरदस्त हमले के बाद, इस जबरदस्त चाल के बाद मुसलमानों का क्या हुआ, शिकस्त हुई, फतह हुई, अल्लाह की मदद आई या नहीं, ये हम 70वें हिस्से में इंशाअल्लाह तफसील से सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने घर वालों को बिठाएं कि 20 मिनट रोजाना निकालकर वो इस सीरीज को देखें ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के और करीब आए। जब हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे नबी की जिंदगी हमको पता चलेगी, तभी तो हम इसकी दावत चला सकेंगे, तभी तो हम उस पर अमल कर सकेंगे। इसलिए अपने घर वालों को पाबंद करें कि 20 मिनट रोजाना निकालकर इस सीरीज को वो जरूर देखें और इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। अगर आप 1, 2, 4 लाइन नहीं लिख सकते तो कम से कम माशाअल्लाह जरूर लिखें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी हिम्मतें बढ़ती है और एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और हमें काम करने में जोश पैदा होता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। तब तक आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।